Coming to basal ganglia, you can define it as subcortical nuclear masses, and it is called basal because it develops in the basal part of cerebral hemisphere. So basal ganglia, subcortical nuclear masses, and it includes three things: corpus striatum, subthalamic nucleus, also called body of Lewis, and substantia nigra. This is the diagram of basal ganglia. I'll tell you how to draw it in 1 minute. This is the simplest line diagram and you have to memorize it. Okay, so first you have to draw the lateral ventricle like this. Then a similar structure below. These two circles are mammillary bodies. Then these are the two caudate nuclei of right and left side. These are kidney shaped and you have to draw it beside the lateral ventricle. This is the lateral ventricle, caudate nucleus. Then these two oval structures on the two sides, subthalamic nucleus. Bigger oval structure lateral to it, that is substantia nigra. And this triangular structure on both the sides, like this. V-shaped it is, and its concavity is facing on the lateral side. Pointed thing is towards the medial side. This is the midline of the body, right? Globus pallidus and putamen. Globus pallidus and putamen, right? This structure is actually the red nucleus. You can label it. And finally, this is called frontal section of basal ganglia. Label it as frontal section of basal ganglia. Thank you. Talking about corpus striatum can also be called as subcortical masses of grey matter. It is further divided by the fibers of internal capsule into two parts. Internal capsule is a band of fibers you will learn in neuroanatomy. So two parts are medial caudate nucleus and lateral lenticular nucleus. Lateral lenticular nucleus further has two parts, outer putamen and inner globus pallidus. So remember this: medial caudate nucleus and lateral lenticular. You can remember like L for lateral, L for lenticular nucleus, and medial caudate nucleus. C is more close to M. So lenticular nucleus is further into outer putamen and inner globus pallidus. Now phylogenetically and functionally, phylogenetically means evolutionary. The corpus striatum can be divided into neostriatum and paleostriatum. Neo matlab new, paleo matlab purana. So paleostriatum is what has developed before, earlier, and neostriatum is new. Neo matlab what has developed later. So now we had seen the three parts of corpus striatum: medial वाला caudate nucleus and lateral में outer putamen and inner globus pallidus. तो इसमें से neostriatum में medial वाला caudate nucleus and lateral में से outer putamen neostriatum में आता है, and paleostriatum में globus pallidus आता है. You have to remember it. Pallidum. Remember it this way. मतलब neostriatum में caudate nucleus and putamen, and paleostriatum में globus pallidus. Now subthalamic nucleus is situated lateral to red nucleus and dorsal to substantia nigra in mesencephalon. Subthalamic nucleus is a biconvex mass of grey matter. You will only be convenient in learning it if you're clear with the diagram. So please focus on practicing the diagram. Substantia nigra, the third part of basal ganglia, it's a sheet made of pigmented nerve cells. It appears dark as the neurons contain the pigment neuromelanin. So you can remember it this way: nigra is similar to negros. Negros means the black people. Sheet made up of pigmented nerve cells, and they appear dark because of the pigment neuromelanin. So coming to the functions of basal ganglia, main one is control of voluntary motor activities initiated by the motor cortex. Voluntary activities are initiated by the motor cortex. आपको भी पता है, like raising your hand या फिर walking, voluntary activities. तो उसमें 3 points है. Cognitive control of motor activity मतलब planning and programming of the movement कि कितना walking करना है, कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, planning and programming. Then timing and scaling of the intensity of movements मतलब कितने फास्ट मूवमेंट्स करने हैं, कितने इंटेंस करने हैं. देन थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबकॉन्शियस एग्जीक्यूशन ऑफ सम मूवमेंट्स. मतलब अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू कॉन्शियसली मूव योर हैंड्स वाइल वॉकिंग, राइट. वो अपने आप आपके हाथ हिलते हैं वाइल वॉकिंग टू एंड फ्रो. यू आर नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली कि चलो मुझे अब हाथ हिलाना है वॉकिंग करते समय. अपने आप हिलते हैं सबकॉन्शियसली. सेकेंड एग्जाम्पल, क्रूड मूवमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस टू अकम्पनी इमोशंस. आपको अगर रोना आ रहा है
तो ऑटोमेटिकली वो मसल स्ट्रेच होके रोने वाला एक्सप्रेशन बन जाता है चेहरे पे. देन आप जब बिगिनर ड्राइवर होते हैं, मतलब अभी अभी ड्राइविंग सीखे, तो क्लच एंड ब्रेक आपको कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ता है. बट व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट ड्राइवर, क्लच ब्रेक का कंट्रोल सबकॉन्शियसली हो जाता है. यू डोंट हैव टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट इट एवरी टाइम यू प्रेस द क्लच. सबकॉन्शियसली ही आप प्रेस कर जाते हैं. देन लिम्ब मूवमेंट वाइल स्विमिंग. यू डोंट हैव टू थिंक एवरी टाइम व्हेन यू डाइव इन द वाटर कि अब आपको पैर हिलाने हैं. सबकॉन्शियसली हिल जाते हैं. तो दी सबकॉन्शियस एग्जीक्यूशन ऑफ सम मूवमेंट्स अंडर द हेडिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज इज द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया. दिस सबकॉन्शियस एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसल गैंग्लिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. और इसका रीजन है कि बाय सबकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज द बेसल गैंग्लिया रिलीव्स द कॉर्टेक्स फ्रॉम रूटीन एक्ट्स सो दैट कॉर्टेक्स कैन बी सेट फ्री टू प्लान इट्स एक्शंस. मतलब कॉर्टेक्स को दुनिया ने कॉर्टेक्स को हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए बनाया है. लाइक इंटेलिजेंट थिंग्स सोचने के लिए, मैथ्स के सम्स, या फिर आपको लाइफ में क्या करना है, आपका प्रोफेशनल वर्क, ये सब के लिए कॉर्टेक्स को बचा के रखना है. कॉर्टेक्स हैज़ टू इन्वेस्ट इटसेल्फ इन डूइंग दीज प्रोडक्टिव एंड रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो ये जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है, लाइक वॉकिंग करते टाइम हाथ हिलाना, स्विमिंग करते टाइम पैर हिलाना, दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. सो सबकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ दीज एक्टिविटीज इज डन बाय बेसल गैंग्लिया. मतलब कॉर्टेक्स को इन चीज़ों के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है. कॉर्टेक्स कैन इन्वेस्ट इट्स एनर्जी इन डूइंग मोर important things, and these things are relatively unimportant which can be controlled subconsciously. Coming to the second function, control of reflex muscular activity. बेसल गैंग्लिया क्या करता है? पोस्चर मेंटेन करने वाले मसल्स की एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं. तो हर बार आप जब खड़े रहते हैं, व्हेन यू स्टैंड और व्हेन यू आर वॉकिंग, आप ऐसे कॉन्शियसली सोच के थोड़ी ना खड़े रहते कि हाँ अब मुझे सीधा खड़ा रहना है, आई हैव टू मेंटेन माई बॉडी पोस्चर. ऐसा नहीं है ना, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है पोस्चर सबकॉन्शियसली. तो दैट इज डन बाय बेसल गैंग्लिया. It regulates the activity of muscle which maintain posture. रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी. थर्ड इज कंट्रोल ऑफ मसल टोन. अगर आप स्ट्रेच रिफ्लेक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मसल स्पिंडल एंड गामा मोटर न्यूरॉन आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच मेंटेन मसल टोन ऑफ द बॉडी. एंड सो दीज कंपोनेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय बेसल गैंग्लिया. मसल टोन मतलब टोनिसिटी ऑफ द मसल, की रिजिड है मसल या फिर कैसा है. तो यू हैव टू रिमेंबर इन द लीजन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया मसल टोन इंक्रीजेस. और पार्किंसंस डिसीज इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग कि लीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया विच कॉजेस रिजिडिटी ऑफ मसल. इट इज कॉल्ड लेड पाइप रिजिडिटी, right? So basal ganglia controls reflex muscular activity of posture maintaining muscles. Basal ganglia controls muscle tone, and basal ganglia has a role in arousal mechanism too. Red nucleus and globus pallidus have a role in arousal mechanism. basal ganglia के functions के अंडरनीथ आपको ये एक ही important बात मन में रखनी है कि भाई subconscious control of activities. basal ganglia के functions में हमने देखा कि basal ganglia subconsciously बहुत चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, like swinging of arms while walking and all. So by doing that, basal ganglia frees up or relieves the cortex from routine acts so that cortex can be set free to plan more important things. मतलब ये जो walking करते टाइम हाथ हिलाना, या फिर swimming करते टाइम पैर हिलाना, या फिर गाड़ी चलाते टाइम क्लच ब्रेक दबाना, ये बहुत रूटीन एक्ट्स हैं एंड दे आर वेरी मतलब रूटीन एक्ट्स. दे डोंट नीड कॉन्शियस अटेंशन एवरी डे. सो कॉर्टेक्स की एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए एवरी डे इन डूइंग दोज रूटीन एक्ट्स. तो कॉर्टेक्स को मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स करने के लिए हमने रखा है, और बेसल गैंग्लिया ने ये रूटीन एक्ट छोटे छोटे चीज़ों का कंट्रोल करने का काम ले लिया है. जो पिछली वाली डायग्राम थी दैट इज़ द प्रॉपर डायग्राम ऑफ बेसल गैंग्लिया, वो तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए. उसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये डायग्राम इज ओनली वन साइड, मतलब उधर राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में ऐसे स्ट्रक्चर थे. यहाँ पे हमने डिटेल बनाया है एक ही साइड का डिटेल के साथ. तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल, ये जो अंदर वाली चीज़ है. एंड इट्स कॉन्केविटी इज डायरेक्टेड लैटरली, मतलब ये जो पॉइंटेड चीज़ है इस साइड में बॉडी की मिड लाइन है, मीडियल साइड है. दिस इज द लैटरल साइड. इंटरनल कैप्सूल की ये डायग्राम आपको ब्रेन के न्यूरो एनाटॉमी में भी बहुत काम आएगी. तो यू हैव टू प्रॉपरली लर्न दिस डायग्राम ऑल्सो. ऐसे बनाना है वी शेप्ड, आउटर साइड में
में कॉन्केविटी, और फिर इधर ऐसे सेमी सर्कल बनाना है जिसका बाहर पुटामेन है, इनर ग्लोबस पैलिडस है. दिस टुगेदर इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. इधर ऊपर बनाना है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और इधर नीचे बनाना है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस. एंड दिस थिंग टोटल इज कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल, जिसके 3 पार्ट्स एंटीरियर लिम्ब, जेनु एंड पोस्टीरियर लिम्ब, और इसके यहाँ पे है थैलेमस. यू हैव अ शॉर्ट नोट कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल इन एनाटॉमी टू, सो प्लीज लर्न दिस डायग्राम प्रॉपर्ली. एंड इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको बहुत जल्दी जल्दी अगर पेपर ख़त्म करना है तो ऑलवेज प्रेफर टू ड्रॉ डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट. एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे देख के. तो प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम की. अगर सिर्फ डायग्राम भी बना के आ गए तो आपको थ्योरी लिख के आने के भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसल गैंग्लिया. समराइजिंग इट, उसके 3 पार्ट्स रहते हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम, सबथैलेमिक न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा. तीनों का 2-2 सेंटेंसेस में डिस्क्रिप्शन दिया है हमने वीडियो के स्टार्ट में. फिर उसके 4 फंक्शंस लिखने हैं कि कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग है, टाइम एंड इंटेंसिटी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज सबकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द अनइम्पॉर्टेंट एंड रूटीन एक्ट्स. आप अनइम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते बट रूटीन एक्ट्स बोल सकते हैं. बेसल गैंग्लिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ द रूटीन एक्ट्स सो दैट इट फ्रीज अप द कॉर्टेक्स टू प्लान मोर इंपॉर्टेंट वॉलंटरी फंक्शंस. अराउजल मैकेनिज्म है, मसल टोन का कंट्रोल है, एंड रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी, पोस्चर वाले मसल्स का, ये फंक्शंस है. बाकी पार्किंसंस डिसीज इज द डिसीज एसोसिएटेड विद बेसल गैंग्लिया, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.